Hi, this is Yogi Chaudhary, and I think you all are well, and I think you all are enjoying the online classes. So today I will discuss about arrays using NumPy. Means I can describe about NumPy package. NumPy package helps to manage the arrays with numerical values. Also, I can describe about matplotlib package, which is used to drawing or describe various graphical views. Actually, we can compare this matplotlib package with MATLAB software. Uh, Various types of facilities of MATLAB software are available on this package. Especially, we can describe about pyplot subpackage of matplotlib package. Actually, by pyplot we can draw various types of plotting graphs. That is, bar chart means bar graph, line chart means line graph, and also scattered plot, and which have x and y axis means based on x and y axis. So let's go to the class. Okay, first of all, I can describe about NumPy package by which we can manage arrays with numerical values. Means how can we install? First, I can describe about actually actually NumPy is a package. NumPy actually is a package of Python. By this package, we can manage arrays using numerical values. So, so first we need to understand about how to install this NumPy package. Means how can you install this NumPy package into your Python software? Means Python idle software. Python idle software is the basic software of the Python software of Python programming language. So, how can we install this NumPy package? First of all, I can describe its introduction. Then I can tell you its environment and installation process. Means how can you install, but how to install this NumPy package. So let's start. Actually, NumPy I have already discussed about it. NumPy actually कुछ नहीं है. NumPy एक्चुअली पाइथन का पैकेज है जिसका पूरा नाम है न्यूमेरिकल पाइथन. न्यूमेरिकल पाइथन मैंने ऑलरेडी बोल दिया. NumPy इज ए पाइथन पैकेज. NumPy एक पाइथन पैकेज है जिसके जरिए हम लोग एरेज को मैनेज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके. मतलब एरेज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू means using NumPy package we can manage arrays with numerical values. So NumPy का फुल फॉर्म जो है न्यूमेरिकल पाइथन, तो इससे ही पता चल जाता है. न्यूमेरिकल बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग हैंडल कर सकते हैं लेकिन एरे के जरिए. एंड एक्चुअली ये पाइथन का एक लाइब्रेरी है मैंने बोल दिया. और बेसिकली नामपाई पैकेज एरे लेके काम करता है. नामपाई पैकेज एरे लेके काम करता है किसके लिए? न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए. न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब कोई भी यूजेबल नंबर ऑफ रियल लाइफ.
means 10.5, 2.5, 100, 20, 1, 10. These all are. Secondly, how can we install this package in our Python software? Its environment is we need to install this package before using NumPy, and to install NumPy package we need internet connection and Python idle software. मीन्स पहले से पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, एंड नामपाई पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है, हम लोग का कंप्यूटर में एक विंडोज की रहता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। विंडोज की रहता है लैपटॉप में भी और डेस्कटॉप में भी। ये मैं विंडोज के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर विंडोज यूज करते हैं। और लिनक्स होगा तो सिमिलर प्रोसेस है, सिर्फ टर्मिनल ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे दोनों के लिए, लेकिन ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में ये सिर्फ विंडोज के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट दोनों के लिए सेम ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ अलग है, तो हम डिस्क्राइब कर देंगे लिनक्स के लिए क्या करना पड़ेगा और विंडोज के लिए क्या करना पड़ेगा। तो विंडोज के ऊपर पहले मैं बोल देता हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर विंडोज यूज करते हैं। तो लैपटॉप में एक विंडोज की रहता है, मतलब स्टार्ट बटन की तरह दिखने वाले एक विंडोज की रहता है, जो स्टार्ट बटन की तरह दिखता है। बेसिकली वो विंडोज की स्टार्ट बटन के लिए रहता है। बेसिकली ये विंडोज मतलब विंडोज बेस्ड लैपटॉप के लिए जो जितने सारे लैपटॉप है सभी में ये स्टार्ट बटन जैसा एक विंडोज की रहता है, ठीक है ना। तो उस वो विंडोज की प्लस आर प्रेस करना है, मतलब दोनों एक साथ में प्रेस करना है। विंडोज की प्लस आर मतलब विंडोज की एंड आर दोनों को एक साथ में प्रेस करना है, तो एक छोटा सा रन विंडो आएगा, मतलब जहाँ पे विंडोज का स्टार्ट बटन रहता है उसके सामने एक रन विंडो आएगा। उस रन विंडो में ये CMD लिखना पड़ेगा। ये जो रन विंडो है ना, ये जो रन विंडो है वहां पे इस वहां पे CMD लिखना पड़ेगा। ये जो CMD दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये CMD टाइप करना पड़ेगा। एक रन विंडो आएगा, वहां पे कुछ टाइप कर सकते हो, तो वहां पे वो रन विंडो के अंदर तुम्हें CMD टाइप करना है। ये CMD का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। बेसिकली ये डॉस नाम पे जाना जाता है, ठीक है ना। डॉस स्क्रीन डॉस इसी नाम पे जाना जाता है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग कमांड के जरिए काम करते हैं। मतलब विंडोज का मोस्ट ऑफ काम यहाँ जाके हम कमांड लिख के कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इंस्टॉलेशन का काम कमांड प्रॉम्प्ट में इजी होता है, ठीक है ना, ग्राफिकल के जरिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जितने सारे काम है, मतलब और भी कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम वाला, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करने वाला जितना सारा काम रहता है वो कमांड के जरिए करना पड़ता है, इजी होता है। और बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए जो लोग काम करते हैं वो लोग एक्सपर्ट ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके CMD टाइप करना है रन में जाके, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मतलब CMD टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है, ठीक है ना। उसके बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो मतलब डॉस स्क्रीन ओपन हो जाएगा, मतलब ब्लैक वाला विंडो ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे जाके ये वाला टाइप करना है CD, देन ये पाथ देना है। ये पाथ में एक्चुअली टाइप नहीं करना है, क्योंकि ये जो पाइथन का यहाँ पे जो दिख रहा है ना पाइथन 38-32, एक्चुअली ये पाइथन 38 मतलब 38 है पाइथन का वर्जन। तो मुझे भी पता नहीं तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है, 3.7 हो सकता है, 3.8 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, जो भी होगा ये ऐसा ही रहेगा। 3.8 होगा तो यहाँ पे 38 रहेगा, 3.7 होगा तो यहाँ पे 37 रहेगा, ठीक है ना। और 2.7 होगा तो यहाँ पे 27 रहेगा, और 32 मतलब 32 बीट, 64 होता तो यहाँ पे 64 बीट रहता। तो ये पाइथन वर्जन के हिसाब से रहता है। तो ये वाला पाथ तुम लोग टाइप करोगे तो काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है तुम लोगों ने
कौन सा पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पाथ डाल दिया, लेकिन तुम लोग को इसी पाथ में जाना है। ये ऐप डाटा एक फोल्डर है, तुम लोग तो डायरेक्टली सी यूजर्स ओबीजे तक चले जाओगे, लेकिन उसके बाद जो ऐप डेटा, उसके बाद जो ऐप डेटा नाम का उसके बाद जो ऐप डेटा नाम का फोल्डर है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो हिडन रहता है। इसको क्या करना पड़ेगा, शो ऑल हिडन फोल्डर्स ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, तभी ये ऐप डेटा ऑप्शन तुम लोगों को दिखेगा, क्योंकि ये हिडन रहता है। ऐप डेटा को पहले शो ऑल हिडन फोल्डर्स क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऐप डेटा दिखेगा। उसके बाद ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम, पूरा सब सेम है, पाइथन भी सेम है, जस्ट यहाँ पे जाके अलग हो जाता है। ये अलग होता है, डिपेंड करता है तुम कौन सा पाइथन का वर्जन यूज करते हो। 3.7 होगा तो 37 आएगा, ये 3.8 पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हो तो ये 38 आएगा, 2.7 पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 27 आएगा। और हाइपेन देके कौन तुम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 64 बिट होगा तो यहाँ पे 64 आएगा, 32 बिट होगा तो 32 आएगा। उसके बाद बाकी पूरा स्क्रिप्ट सेम, इसलिए क्या है, सी ड्राइव में जाके ये पाथ में तुम्हें एंटर करना है। उसके बाद ये पाथ को तुम लोग को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपी करके CD स्पेस देके यहाँ पे जो मैंने पाथ लिखा है उसके बदले में वो पाथ वहां पे जाके पाथ कॉपी करके पेस्ट कर देना है। कौन सा पाथ, ये जो पाथ मैंने लिखा है पूरा सेम ही है, सिर्फ ये पाइथन का वर्जन के हिसाब से ये अलग होता है, मतलब पाइथन 38 32 ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये पाथ CD स्पेस ये पाथ में जाके कॉपी करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करो। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोल दिया दिस पाथ इज अवेलेबल इन सी ड्राइव, सो गो देयर एंड कॉपी एंड पेस्ट इन द कमांड प्रॉम्प्ट। देन एंटर प्रेस करना है, तो फिर क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में तुम इस पाथ में घुस जाओगे, ठीक है ना। आप जाके क्या करना है, जाके PIP इंस्टॉल नाम पाई ये टाइप करना है, तो क्या होगा, मतलब PIP इंस्टॉल नाम पाई, ये लिखने से क्या होगा, ये लिखने से नाम पाई इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके PIP इंस्टॉल नाम पाई, तभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली नाम पाई पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम लोग को दिखेगा भी कितना इंस्टॉल हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है। जब 100% हो जाएगा, एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल, देन यू कैन यूज दिस numpy पैकेज इन द कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्सो। मतलब तुम लोग चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट में numpy को यूज कर सकते हो, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में तुम लोग पाइथन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो और numpy को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम दिखाते हैं numpy में कैसे एरे बनाते हैं और उसी एरे में कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है, नामपाई के जरिए कैसे प्रोग्राम करना है, मतलब नामपाई पैकेज के जरिए कैसे एरे बनाना है एंड उसी एरे के अंदर कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करना है। सो लेट्स गो। ओके, क्रिएटिंग एरे। नामपाई बेसिकली तो बोला ही गया है कि हैंडलिंग एरेज विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये नामपाई पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले नामपाई पैकेज को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट पहले से ही तुम लोगों को पता होना चाहिए, मैं सोच लेता हूँ तुम लोगों को पता है कैसे पैकेज इंपोर्ट करते हैं, और नहीं पता है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा देंगे इंपोर्ट कैसे करना है। तो जो नामपाई पैकेज तुमने पहले इंस्टॉल किया उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा ये इसको यूज करने के लिए। तो फर्स्ट मैं जो एरे दिखाऊंगा वो है 1 डायमेंशनल एरे। 1D मतलब 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। 1 डायमेंशनल एरे मतलब क्या है ना, सिर्फ एक ही लाइन में रहेगा, इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे। तुम लोग देख लो समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ पे है ना, ये देखो कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट नाम है और कुछ नहीं करना है, जस्ट डायरेक्टली लिखना है इंपोर्ट नाम। क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है इंपोर्ट नाम, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है इंपोर्ट नाम। तो
तो numpy पैकेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। numpy पैकेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद numpy को तुम इंपोर्ट करोगे, मतलब numpy को तुम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो पहले numpy के जरिए हम लोग क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे। तो numpy डॉट एरे, बस मतलब numpy के अंदर, numpy पैकेज के अंदर एरे नाम का एक फंक्शन है। तो उस numpy पैकेज का एरे को यूज करने के लिए numpy डॉट एरे लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर थर्ड ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना सारा वैल्यू डालना है तुम लोग डाल दो, तो ये एरे बन जाएगा। एरे बनने के बाद ARR नाम का एक वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। अब ARR को तुम लोग प्रिंट करोगे तो पूरा एरे को तुम लोगों को दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, जैसे तुमने एरे बनाया थर्ड ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे दिखेगा। मतलब इसके अंदर थर्ड ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे ही तुम लोग 10 20 ऐसे ही तुम लोग 100 64, मतलब तुम लोग रैंडमली भी डाल सकते हो, सिक्वेंशियली भी डाल सकते हो, मतलब लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है, ठीक है ना। क्योंकि NumPy ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करता है, क्योंकि NumPy का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ये वन डायमेंशनल एरे है, मतलब एक ही रो में सारा वैल्यूज दिखाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो दूसरा वाला एग्जांपल हम दिखा रहे हैं वो है 2 डायमेंशनल एरे। ये जो 2D एरे लिखा हुआ है मतलब 2 डायमेंशनल एरे। तो इसके लिए भी इंपोर्ट numpy एज np, मतलब तुम लोग अलग से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे np इसलिए डाला कि तुम लोग डायरेक्टली numpy यूज करके भी कर सकते हो, या फिर numpy जो पैकेज है इसका एक एलियस नाम भी डाल सकते हो, मतलब numpy पैकेज का एक नाम तुम लोग दे सकते हो। क्योंकि numpy बार बार यूज करना मुश्किल हो सकता है, तो तुम लोग छोटा एक नाम दे सकते हो इसका, import numpy एज np, या फिर import numpy एज n, कुछ भी दे सकते हो। तो ज़्यादातर n वेरिएबल होता है, तो इसलिए मैंने np डाल दिया, ठीक है। तो छोटा हो गया, अब यूज करने के लिए तुम लोग का सुविधा होगा। मतलब np numpy का एक एलियस नाम डाल दिया। अब देखो सिमिलर है, ARR इजिकल ARR वेरिएबल है, उसके बाद सेम है np डॉट एरे, np डॉट एरे। एरे फंक्शन के अंदर थर्ड ब्रैकेट में वैल्यू डालना है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है मैट्रिक्स, पाती मैट्रिक्स है। जिसको मैट्रिक्स समझ में आता है तो उसके लिए बहुत सही है, ठीक है ना। और जिसको मैट्रिक्स पता नहीं उसके लिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे रो कॉलम कॉन्सेप्ट रहता है। 2D एरे का मतलब है जहाँ पे रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट रहता है। 2D एरे का मतलब है टेबल कॉन्सेप्ट। 2D एरे का मतलब है टेबल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट में 1 2 3 है, मतलब ये है एक रो, कोमा देखिए ये दूसरा वाला रो है 4 5 6, ठीक है ना। तो दो ठो रो है, एक 1 2 3 रो है और दूसरा 4 5 6 रो है। ये दोनों रो को टोटल थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। दो रो को दो थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, टोटल को और एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। मतलब एक मैट्रिक्स कह सकते हो, टेबल कह सकते हो 2D एरे को। मतलब सिंपली जहाँ पे रो एंड कॉलम कॉन्सेप्ट है वही 2 डायमेंशनल एरे। तो इसको भी मैंने एरे फंक्शन के अंदर डाल दिया, मतलब ये एक एरे बन गया। अब लेकिन np डॉट एरे इसलिए लिखा क्योंकि एरे फंक्शन नापाई के अंदर है, और np नापाई का क्या है, एक एलियस नेम है, तो np डॉट एरे कर सकते हैं। अब एरे का ये पूरा सारा वैल्यू एरे में आ चुका है ARR वेरिएबल का। ARR वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो एरे दिख जाएगा। उसके बाद एक मैं नया वाला टर्म लिखा है यहाँ पे, ARR जो वेरिएबल है ना, इसमें तो पूरा एरे आ चुका है, डिस्प्ले करेंगे तो पूरा एरे ऐसे ही दिख जाएगा थर्ड ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ARR डॉट ndim, इसका मतलब क्या है, ये ndim एक फंक्शन है जिसके जरिए ये एरे का डायमेंशन क्या है वो हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब ndim मतलब डायमेंशन, मतलब ndim एक फंक्शन है जो एरे का डायमेंशन बोल देता है। मतलब कौन सा डायमेंशन में ये एरे बिलोंग करता है, ठीक है ना, कौन सा डायमेंशन में है।
जैसे कि ये 1 डायमेंशन है तो यहाँ पे देखिएगा 1D। ऐसे ही ये 2 डायमेंशन का है, क्योंकि जहाँ पे रो एंड कॉलम कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कहते हैं रो एंड कॉलम कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं 2 डायमेंशन है। तो ये इसका डायमेंशन क्या दिखेगा, 2D दिखेगा। ठीक है, तो यही बेसिकली यूज ऑफ नामपाई पैकेज है। इसके बाद बहुत सारा है, तो नामपाई नॉर्मली समझ में आ जाए तो थोड़ा देखने से पता चल जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया हो चुके हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेल कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो है मैट प्लॉट लीव पैकेज। मतलब यहाँ पे मैट प्लॉट लीव तो एक पूरा बहुत बड़ा ग्राफिकल पैकेज है। वहाँ पे बहुत सारा ग्राफ ड्रॉ, 3D 2D कुछ भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो बोलना चाहता हूँ, पाई प्लॉट। मैं एक्चुअली यहाँ पे पाई प्लॉट डिस्कस करूँ। मैट प्लॉट लीव एक बहुत बड़ा पैकेज है, मैं उसी बहुत बड़ा पैकेज का सिर्फ पाई प्लॉट डिस्क्राइब करूंगा। मतलब ये पाई प्लॉट पैकेज के जरिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ, मीन्स बार ग्राफ, लाइन ग्राफ मतलब लाइन चार्ट, ठीक है ना, वो एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके जो होता है बार ग्राफ, लाइन चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट, और प्लॉटिंग कर सकते हैं, बहुत टाइप का प्लॉटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसी पाई प्लॉट को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करें। चलो नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, वहां पे जाके देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट। इसका मतलब है मैट प्लॉट लीव मास्टर पैकेज है। ये मैट प्लॉट लीव एक्चुअली मैटलैब के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मतलब मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग बहुत सारा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 3D ग्राफिक्स, मतलब चार्ट ग्राफ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही वो मैट लैब के रिप्लेस में यहाँ पाइथन में मैट प्लॉट लीव पैकेज बनाया गया है। ये मैट प्लॉट लीव बहुत इजी है, इसकी जरिए हम लोग मैथ लैब का बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो पूरा मैट प्लॉट लीव डिस्क्राइब करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बाद में हम लोग जरूरत होगा तो और भी डिस्क्राइब। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जितना सारा सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे चाहे तो हम लोग सिविल का भी कोई ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑटोकैड, 3D ऑटोकैड है, तो उसमें और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी ड्राइंग है जिसका रिप्रेजेंटेशन मैट मतलब ऑटोकैड से भी नहीं होता है, तो हम लोग तब मैटलैब सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर क्या है, पेडेबल सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैटप्लॉटलिब जो है वो फ्री में मिलता है और बहुत इजी भी है, इसलिए आप मैटप्लॉटलिब ज़्यादा यूज होता है। तो इसका हम लोग सिर्फ पाईप्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पाईप्लॉट ज़्यादातर रिसर्च या फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन में आता है। मतलब बार ग्राफ, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ठीक है ना, लैंड प्लॉट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके हिसाब से, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके। बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज जो देखेंगे 2D ग्राफिक, 2D ग्राफ देखेंगे। तो चलो क्या क्या सीखेंगे। मैट प्लॉट लीव तो हम बोलेंगे, मतलब पहले मैट प्लॉट लीव क्या है, पाई प्लॉट और पाई प्लॉट क्या है वो तो मैंने बोल दिया, तो उसका इंट्रोडक्शन। और फर्स्ट हम लोग जो ड्रॉ करने वाला है लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट कैसा होता है हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके कैसे लाइन चार्ट यहाँ पे बनेगा, थोड़ा एक ड्रॉ करके दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली पहले मैंने तो बोल ही दिया, मैट प्लॉट या मोस्ट पॉपुलर पाइथन मैट प्लॉट लीव एक मास्टर पैकेज है। ऐसे ही उसके अंडर में पाई प्लॉट रहता है। ये पाई प्लॉट इज द सब पैकेज ऑफ मैट प्लॉट लीव पैकेज। मैट प्लॉट लीव एक पैकेज है, उसके अंडर में पाई प्लॉट एक सब पैकेज है। तो पाई प्लॉट को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को जो इंस्टॉल करना है, मैट प्लॉट लीव पैकेज पहले इंस्टॉल करना है। क्या करना है, मैट प्लॉट लीव पैकेज पहले इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल कैसे करोगे, जैसे मैंने नामपाई को इंस्टॉल करना सिखाया वो पाथ में पहले जैसे दिखाया, ठीक है ना, पूरा सेम टू सेम नामपाई पैकेज जैसा है। मैट प्लॉट लीव कैसे इंस्टॉल करोगे ना, जैसे मैट प्लॉट लीव पैकेज में काम करने से पहले तुम लोगों को मैट प्लॉट लीव
पैकेज को तुम लोगों को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करोगे? जैसे मैंने NumPy पैकेज इंस्टॉल करने का प्रोसेस बोला, ऐसे ही तुम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए ऐसे ही कॉर्न में जाके और जस्ट कुछ नहीं करना है, NumPy के बदले में मैटप्लॉटलिब लिख देना है, बस सिमिलर। ठीक है ना? तो तुम लोग आगे जाओगे तो तुम लोग देख पाओगे, ये देखो यहाँ पे जो NumPy है ना, ये NumPy के बदले में मैटप्लॉटलिब लिख देना। ठीक है, तो चलो मैटप्लॉटलिब मैंने सोच लेते हैं कि इंस्टॉल कर सकते हो तुम। तो ये पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है जिसके जरिए हम लोग बहुत सारा ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए या फिर डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी तुम करना चाहते हो वो करने के लिए डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग स्पेशली जो दिखाने वाले हैं पाइप्लॉट के ऊपर हम लोग ज्यादातर यहाँ पे दिखाएंगे। तो पाइप्लॉट 2D एरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके ड्रॉ करेंगे। एक्स एंड वाई एक्सिस मतलब ये 2D ग्राफिक्स के लिए है। ठीक है ना? प्लॉटिंग, ग्राफिक ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो, और बेसिकली ये एरे के ऊपर डिपेंड करके काम करता है, क्योंकि मैंने जो पहले एरे के बारे में डिस्क्राइब किया ना, वही एरे के जरिए काम करें। क्योंकि एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सपोज एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारा वैल्यूज का डेटा या फिर वैल्यूज का जरूरत होता है। उसके हिसाब से ये ग्राफ ड्रॉ होता है, मतलब चार्ट, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट। ठीक है ना? तो चलो पहले लाइन चार्ट क्या होता है बोल देते हैं। लाइन चार्ट मतलब जिसकी जरिए हम लोग मार्क कर सकते हैं किसी स्टेट का, मतलब प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, किसी स्टेट का पॉपुलेशन स्टेटस क्या है, किसी स्टेट का सपोज रिलीजियन स्टेटस क्या है। मतलब सपोज यहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है, तो हम लोग रिलीजियन मार्क करना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट के जरिए कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ के जरिए कर सकते हैं। लेकिन सपोज बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है यहाँ पे, तो बहुत सारा रिलीजन की भी रहता है, तो या फिर बहुत सारा स्टेट का भी रहता है। कोने किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर बहुत सारा स्टेट का आदमी लोग रहता है, तो कौन सा कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कौन सा स्टेट का है, ये भी मार्क हम लोग लाइन चार्ट के जरिए कर सकते हैं। मतलब ये दिखा देंगे कि सपोज वेस्ट बंगाल में बंगाली लोग ज्यादा रहता है, उसके बाद मैं सोच लेता हूँ कि बिहारी लोग ज्यादा रहता है, उसके बाद सोच लेता हूँ कि पंजाबी लोग ज्यादा रहता है। मतलब ये एक प्लॉटिंग, ये क्या है, एक प्लॉटिंग करके दिखा देगा, ग्राफ के जरिए हम लोग को दिखा देगा। एक ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो इसके पहले कैसे यूज करना है देख लेते हैं। लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए पाइप्लॉट पैकेज जो है, मतलब मैटप्लॉटलिब पैकेज के अंदर पाइप्लॉट जो सब पैकेज है, इसके अंडर में प्लॉट नाम का एक फंक्शन है, इसके जरिए हम लोग लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मैटप्लॉटलिब एक पैकेज है, पाइप्लॉट उसका सब पैकेज है, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए कोई भी पैकेज सब पैकेज इंपोर्ट करने के लिए ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। ये बहुत बड़ा है, बार बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, इसका एक एलियस नाम डाल देंगे, HPLT। ये एलियस के बारे में हम लोगों को पहले ही पता चल गया है, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों पाइप्लॉट के बारे, जहाँ पे हम लोग NumPy के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। NumPy का क्लास में हम पहले बोल दिया कि ये एलियस नेम क्या होता है, मतलब ये बहुत बड़ा नाम है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट बार बार लिखना मुश्किल है, इसलिए इसका एक एलियस नाम डाल दिया PLT। तो ये PLT के जरिए हम लोग ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट पैकेज के अंदर जितने सारे फंक्शंस हैं सबको ये PLT के जरिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये PLT के जरिए हम लोग ये प्लॉट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इसलिए लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। चलो देख लेते हैं PLT डॉट प्लॉट। ऐसे ही यहाँ पे तुम लोग PLT के बदले में ये पूरा लिख सकते हो, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट प्लॉट। ये प्लॉट का काम है लाइन चार्ट ड्रॉ कर देगा, मतलब ये जो प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो है ये है एक्स एक्सिस, और 1 4 9 16 ये है वाई एक्सिस। ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करके
एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर देगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने पहले देख लिया, ठीक है। ये है ग्राफ, ये ज्यादातर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मतलब ये वाला जो 1 2 3 4 है ये एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई एक्सिस के लिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, ठीक है ना। मतलब 1, मतलब मैं एक्यूरेट साइड ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, मैं एक्यूरेट साइड ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली 1 यहाँ से स्टार्ट होना है, 1 2, एक्चुअली ये 1 से नहीं होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 0 1 2 3, यहाँ पे शायद 4 होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, उसके बाद 1 है 2 है 3 है 4 है, और यहाँ पर क्या होगा 1, सपोज 0, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है ना। और 0 2 के बीच में 1 रहता है, क्योंकि हम लोग जितना क्लोज में लेंगे ग्राफ का लेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या है, ग्राफ को एक कंट्रोल में रखना है, इसलिए 0 2 4 ऐसे ऑटोमेटिकली वो मार्क कर लेगा, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट करके सपोज 16 तक जाएगा, ठीक है ना, ये 16 तक जाएगा। तो ऐसे ही लाइन टच ड्रॉ होगा। तो ये दोनों का जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये लाइन ड्रॉ होगा, जैसे कि ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो यहाँ का ये एक्स का वैल्यू जो है 1 है, ये वाई का वैल्यू सपोज पहले 1 है, मतलब ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट एक होगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही सेकेंड वाला पॉइंट वाई का क्या है, सेकेंड वाला पॉइंट वाई का क्या है, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। एक्चुअली ये 0 to 16, 0 to जो 16 है ना, तो जो 0 to 16 है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी में, कि ना नहीं तो देर हो जाएगा बहुत। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे 0 टू अप टू 16 तक है, क्योंकि मैंने बोल दिया ये y है और ये x है, ठीक है ना। तो y 0 to 16 है और x क्या है 0 1 टू 4 तक है। और ये जो यहाँ पे वैल्यूज है ना, ये x में जितना सारा वैल्यूज है और y में जितना सारा वैल्यूज है, ये दोनों के पॉइंट के हिसाब से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है ना। यही है हम लोग का लाइन चार्ट। तो शायद समझ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, plt.y लेवल, मतलब y लेवल में एक मैसेज डाला गया है, सम नंबर्स। तो आप देख लो plt.y लेवल, plt डॉट प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये plt डॉट ड्रॉ करेंगे, plt डॉट प्लॉट, उसके बाद एक्स एंड वाई लेवल डाल दिया तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, जो ग्राफ मैंने दिखाया अभी अभी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे plt डॉट वाई लेवल डाल दिया गया है,
तो वाई लेवल का मतलब क्या है ना, ये जो यहाँ पे वाई लेवल में क्या है, साम नंबर्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये साम नंबर्स, साम नंबर्स ये वाई के यहाँ पे लिख जाएगा। वाई लेवल मतलब है वाई का जो एरिया है वहां पे एक मैसेज दिखेगा, मतलब एक कैप्शन दिखेगा, साम नंबर्स, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं उस, ये वैल्यू दे देंगे, उसके बाद एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर दिया, इससे तो किसी को पता नहीं चलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, तो किसके हिसाब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। तो हम लोग ये वाई लेवल में कोई कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो ये वाई एरिया में आएगा, और पीएलटी डॉट एक्स लेवल, जैसे वाई लेवल किया था ऐसे ही हम लोग पीएलटी डॉट एक्स लेवल कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ लिख देंगे तो वो ये एक्स एरिया में आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में जाके क्या है, जो पीएलटी को हम लोग इम्प्लीमेंट किया, जो ये तो प्लॉट इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब इसको शो कर देना है। शो करने से क्या होगा, ये ग्राफ को हम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यही है हम लोग का लाइन चार्ट। इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं बार ग्राफ या फिर बार चार्ट। तो वो भी सिमिलर है, बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए या फिर बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार फंक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बार फंक्शन हम लोग यूज करेंगे बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर पहले से ही क्या किया गया है, दो ठो एरन लिया गया है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये एक्चुअली ये एक्स का काम करेंगे, ठीक है ना, एक्स और एक्स लेवल का काम करेंगे, ये वैल्यूज ये वाई का काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये एक्स एरिया में आएगा, ये वाई एरिया में आएगा। आप पीएलटी, और इसके लिए तुम लोग को पता है पीएलटी तो ऐसे ही नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट एच पीएलटी, मतलब यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर देना पड़ेगा, इंपोर्ट यहाँ पे पहले आई एम पी ओ आर इंप्लोट, और जैसे मैंने पहला वाला प्रोग्राम में दिखाया ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट एच पीएलटी। उसके बाद हम लोग पीएलटी, मैंने बोल दिया बार फंक्शन, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार फंक्शन यूज होता है, तो पीएलटी डॉट बार। उसके बाद ये नेम्स जो है ये एक्स लेवल में जाएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी ये एक्स लेवल में जाएगा, और ये वाई लेवल में जाएगा, ठीक है ना, वाई लेवल में जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई वैल्यू का ज्यादा जरूरत है, एक्स एज ए लेवल काम करेगा, ठीक है ना। तो बार ग्राफ कैसा होता है, बेसिकली ऐसे ही होता है, ये एक्स का काम करेंगे, मतलब ग्रुप वन, ग्रुप टू, ऐसे ही मतलब ऐसे आएगा। और ग्रुप वन में पहले वन है, मतलब इतना छोटा बार ग्राफ आएगा, ठीक है ना। आप क्या है दूसरा वाला 10 है, तो ग्रुप ग्रुप टू में 10 तक ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है ना। और ग्रुप थ्री में 100 है, ये पूरा लेके ड्रॉ होगा, ठीक है ना, पूरा लेके ड्रॉ होगा, ये G3 है। और यहाँ पे 0 से 100 तक रहेगा, यही है बार ग्राफ। बेसिकली ड्राइंग उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये बार ग्राफ है। ऐसे ही ये एक स्कैटर प्लॉट है, बेसिकली लाइन चार्ट जैसा है। स्कैटर प्लॉट मतलब क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट आता है, स्कैटर प्लॉट मतलब प्लॉटिंग करेगा सिर्फ। यहाँ पे जैसे बार ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये क्या करेगा, हर पोजीशन पे एक प्लॉट कर देगा, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट डाल देगा। तो देख लेते हैं स्कैटर प्लॉट कैसा है। मतलब ये लाइन चार्ट बार ग्राफ बेसिकली किसी डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। सपोज ये वेस्ट बंगाल स्टेट में या फिर बिहार स्टेट में, यहाँ पर उड़ीसा स्टेट में, कहीं पर भी, मतलब केरल में
कितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब सब राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो ये हम लोग किसी ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए ग्रुप बी ग्रुप सी के बदले में आप लोग क्या कर सकते हो, तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट का नाम डाल सकते हो, कौन सा स्टेट में कितना राइस प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि वेस्ट बंगाल, ऐसे उड़ीसा, ऐसे बिहार डाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ये नेम्स, ये तो पहले ही मैंने बोल दिया, ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई डाल दिया। आप क्या करना है, पीएलटी, और पहले बोल देता हूँ, ये स्केटर प्लॉट ड्रा करने के लिए स्केटर फंक्शन यूज करना जरूरी है। और एक्चुअली ये स्केटर नाम देख के थोड़ा सा थोड़ा सा डर लगने लगेगा, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि डरने का कोई बात नहीं है। स्केटर नाम बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन प्रोग्राम और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत इजी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, मतलब बार का जैसा ही है, ऐसे ही यहाँ पे वाई जो है, वाई 0 to 100 है, ठीक है ना। और एक्स जो है, ये वाई है, सॉरी, ये वाई है। अब क्या है ना, ये जो यहाँ पे क्या है, पहले वन है, पहले यहाँ पे क्या है, वन है। तो यहाँ से वन तक जाएगा, यहाँ से वन तक जाएगा, वन में जाके एक तो मार्क डाल देगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 10 है उसके बाद, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट करके 10 तक जाएगा, ठीक है ना। 10 में जाके एक मार्क दे देगा, एक पॉइंट डाल देगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 100 है। अब लास्ट में जाके यहाँ से वो मार्क करेगा, मार्क करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे 100 में जाके एक पॉइंट डाल देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें लाइन भी ड्रॉ नहीं होगा और कोई बार भी नहीं ड्रॉ होगा। ये जो ये जो पॉइंट मार्क है, ये जो मार्क है, मतलब किसी भी एक मार्क हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी एक मार्क हो सकता है। ऐसे ही मार्किंग करता रहेगा, तभी समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको ही कहते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम लोगों ने क्लास को एंजॉय किया, और भी क्लास आएंगे, लेकिन आप लोग पहले अच्छी तरह से समझ लेने के लिए कोशिश कीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। हम और भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।